थोड़ा सा मैं टॉन्सिल्स के बारे में आपको, ये तो वॉल्डियर्स नहीं था ना, मैं आपको मसल्स मैंने आपको बताया था, ये आपने ओरिजिन इंसर्शन मैंने सुपरफिशियली आपको करवा दी थी, बट आई जस्ट वांटेड यू टू concentrate on that yourself. ये थोड़ा this is something जो आपको ओरिजिन इंसर्शन, नर्व सप्लाई एक्शन, this is too small, too petty to be discussed. आप सारा साल फर्स्ट ईयर में ये करते आए हैं, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्स आपको पता है, वो आपको बता दिए गए हैं कि यू नो वे द स्टाइलर प्रोसेसेस, बोन पे जो है मार्किंग्स वो आपको पता है, बाकी जो कुछ है आप उसको खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, एक तो ये कि ये ओरोफेरिंजियल इस्थमस, ये ओपनिंग ऑफ द ओरल कैविटी इनटू द ओरोफैरिंक्स, दिस इज कॉल्ड द ओरोफेरिंजियल इस्थमस। एक लेट मी हैव अ ब्रेक। अच्छा जी, सो हम बात कर रहे थे ओरोफेरिंजियल इस्थमस की, ये दिस पार्ट, इसकी बाउंड्रीज देख लीजिए। अबव यू हैव द सॉफ्ट पैलेट, बिलो यू हैव द बेस ऑफ द टंग, ठीक है। ये पैलेटोग्लॉसल फोल्ड है, ये पोस्टीरियरली पैलेटोफेरिंजियल फोल्ड है, इनके दरमियान में पैलेटाइन टॉन्सिल पड़ा हुआ है, यहाँ अभी बताते हैं। So lateral sides पे you have these two folds. Anteriorly you have, एक सेकंड के लिए देख थोड़ा बेटा, anteriorly टंग पड़ी हुई है, posteriorly pharynx पड़ा हुआ है, okay? So ये जो fold है, this is the palatoglossal, पैलेट और टंग के दरमियान ये इधर, और posteriorly pharynx है, so it will be palatopharyngeus. इन दोनों के दरमियान ये पैलेटोग्लॉसल है, ये पैलेटोफेरिंजियस है, ये these two folds, इनके दरमियान टॉन्सिल पड़ा हुआ है, पैलेटाइन टॉन्सिल, okay? So the oropharyngeal isthmus, the opening of the oral cavity into the pharynx, superiorly soft palate, inferiorly base of the tongue, and lateral aspect on both the sides, these two folds, palatoglossal fold, palatopharyngeal fold। आगे चलते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल की बात कर रहे थे और उसकी हम थोड़े से रिलेशंस जो हैं वो कर लेते हैं, जस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, डिटेल्स तो उसकी बहुत दी हुई है, जितना आपकी बुक में दिया हुआ मैं बस उतने पे ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ। अच्छा जी, सो पैलेटाइन टॉन्सिल सिंपली इज अ collection of lymphoid follicles present in oropharynx. ये अब ये कहाँ पड़ा हुआ है? collection of lymphatic tissue, where is it lying? Between the two folds जिनकी अभी हमने बात की है, palatoglossal and palatopharyngeal. Palate से tongue will be palatoglossal, और palate ये palate है, between the palate and the tongue ये anteriorly will be palatoglossal because the tongue is lying anteriorly, ये पीछे pharyngeal wall पड़ी हुई है, this is the fold between the palate and the posterior pharyngeal wall, so this is palatopharyngeal posteriorly, और इन दोनों के दरमियान you cannot see them over here, between these two folds, palatoglossal anteriorly, palatopharyngeal posteriorly, between these two folds you have this lymphoid aggregation which is called palatine tonsil. The palatine tonsil is lying in tonsillar fossa. इस tonsillar fossa का दूसरा नाम tonsillar sinus भी है, but आपको भी बताया था ये जो आपका palatine tonsil है, this does not completely fill the fossa.
ठीक है, ओके। अब ये देखिए, obviously this palatine tonsil is resting on something. ये इसकी medial surface है. Medial surface is only covered. Medial surface because it is facing the midline. It is facing the oral cavity. So this will be covered by mucous membrane. और कुछ भी नहीं होएगा. Just mucous membrane. ठीक है. दूसरा ये देख लीजिए. Now this palatine tonsil is resting on the a few structures that make up the bed of the tonsil, या floor of the tonsil, या lateral wall of the tonsil. आप इसको जो भी नाम देना चाहें. The palatine tonsil rests on, is lying on the floor of the tonsil of fossa. अब ये फ्लोर इससे बनता है, ये कैसे? जो दूसरी बात ये है कि दिस tonsil is covered by a capsule. ये capsule incomplete होती है, does not encircle the medial surface, so that is why it's called a hemicapsule. Okay. Now this is the palatine tonsil. So lateral to the palatine tonsil, the lateral wall of the palatine tonsil, या bed या floor of the palatine tonsil, एक तो ये देख लीजिए, ये capsule है, ठीक है, connective tissue है, simply thickening of connective tissue. ये palate है, ठीक है. Outside the capsule, immediately outside the capsule, you have this vein, this large vein. इसको peritonsillar vein भी कहते हैं. ये loose connective tissue में पड़ी होती है. Peritonsillar vein. Then outside the peritonsillar vein, you have this fascia, pharyngobasilar fascia, ये वाला, between the pharynx and the base of skull. This is the base of skull, and this fascia extends between the base of the skull and the superior constrictor muscle ka upper border, and then from there it lines the inside of the pharynx. So pharyngobasilar fascia is lying anterior to these muscles of the constrictor muscles of the pharynx on the inside. Yeah, this you can see from the posterior surface. This is the posterior surface of the pharynx. So outside the connective tissue, in which you have the peritonsillar vein, outside this connective tissue you have pharyngobasilar fascia, and still outside you have this superior constrictor muscle. Outside this superior constrictor muscle, you have this fascia, which is the buccopharyngeal fascia, meaning ये जो superior constrictor muscle है, on the outside this muscle is covered by buccopharyngeal fascia. Okay? And still outside you have these blood vessels. यहाँ पे not only do you have facial artery जिसकी branches यहाँ पे आ रही हैं, over here close over here you also have the internal carotid artery. अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी arterial supply. Very rich arterial supply. That is why it is mandatory that the doctor, the surgeon, ligates all these arteries before he tries to, and the veins, before he tries to remove the tonsil. Sorry. ये देखिए, अब ये आर्टरीज कौन सी हैं? सबसे पहले तो फेशियल की ब्रांच है, ये फेशियल है, इसकी टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल है जो कि लोअर पोल को जाती है. ठीक है, प्लीज नोट, ये फेशियल है, ये इसकी टॉन्सिलर ब्रांच है. इट इज पासिंग, द टॉन्सिलर ब्रांच इज पासिंग through the superior constrictor muscle. It passes through the buccopharyngeal fascia, passes through the superior constrictor muscle, then it passes through the pharyngobasilar fascia, and then enters the lower pole of the tonsil. ये किडनी नहीं है बेटा, ये palatine tonsil है. उसके अलावा you have the ascending palatine
ये देख लीजिए, ये सेनिंग पैलेटाइन है। लिंगुअल की ब्रांचेस जाती हैं, ये ब्रांचेस फ्रॉम द लिंगुअल, ठीक है। देन यू आल्सो हैव ब्रांचेस फ्रॉम द सेनिंग फेरेंजियल, ये सेनिंग फेरेंजियल है। ये यू हैव सेनिंग पैलेटाइन, यहाँ पे ये देख लीजिए, बड़ी अच्छी सेनिंग पैलेटाइन नजर आ रही है। इधर भी सेनिंग पैलेटाइन नजर आ रही है। ये टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल है, ठीक है। ये टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द सेनिंग फेरेंजियल है। ये पूरी आर्टरी जो है ना, ये सेनिंग फेरेंजियल है, ये टॉन्सिलर ब्रांच है। ये फेशियल की टॉन्सिलर ब्रांच है। चल, और यहाँ पे कहीं डिसेंडिंग पैलेटाइन भी दिखाई दी है, ये डिसेंडिंग पैलेटाइन है। All these branches I have demonstrated them over here. Venous drainage be equally important है, because it is mainly the veins that produce massive hemorrhage in the during operation. टॉन्सिलेक्टमी के दौरान हेमरेज का सबसे बड़ा सोर्स ये वेन्स है। कौन सी वेन सबसे बड़ी? तो पैराटॉन्सिलर वेन है ना, दिस वन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट, runs on the outside of the capsule of the tonsil, passes through the ringobasilar fascia, the superior constrictor muscle, and the buccopharyngeal fascia. इनके through pass करके it enters into the facial vein. So the paratonsillar vein ultimately drains into the vein. Please remember, these veins are lying lateral to the tonsil, the outer surface of the tonsil. And ultimately, before draining into the facial vein, yes, all these veins, they form a plexus on the surface of the pharyngeal wall. इसको pharyngeal plexus of veins कहते हैं, ठीक है। And then finally they drain into the facial vein. इसका lymphatic drainage important है, वो आपको पता है, जो blood gastric में जाते हैं और mandible के angle of the mandible, lymph nodes at the angle of the mandible, inferior cervical होते हैं, lateral cervical. Okay. अब मुझे ये बताइए, टॉन्सिल में कोई ऐसी चीज जो आपको anything that is creating a problem, because टॉन्सिल पे बेटा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, टॉन्सिल बहुत से है, बहुत इम्पोर्टेंट है। I guess not many people are listening, even though they are setting दिमाग कहीं और है। Never mind. So एक तो ये टॉन्सिल हमने कर लिया। Thank you, Mariam. You have no problem. I'm so happy. अच्छा, दूसरा हमने ट्यूबल टॉन्सिल करना था बेटा जी। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। So I wanted to do the tubal tonsil with you. अच्छा, प्लीज इन टॉन्सिल्स की लोकेशन याद रख लीजिएगा। फिर रिपीट करती हूँ, इन टॉन्सिल्स की लोकेशन याद रख लीजिएगा। दिस इज द नेसोफैरिंक्स, ठीक है ना। नेसोफैरिंक्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नोज जो है, दैट ओपन्स इनटू द नेसोफैरिंक्स। ये सारा नेसोफैरिंक्स है। तो द नेसोफैरिंक्स इज ये नेसोफैरिंक्स है, ये तो नोज है ना बेटा, ओपनिंग इनटू द, ये यहाँ से नेसोफैरिंक्स स्टार्ट होता है, यहाँ तक upper border of soft palate पर नेसोफैरिंक्स है, ठीक। So it extends from
ये स्फीनॉइड बोन है, बेसल पार्ट ऑफ द बेसी स्फीनॉइड कहते हैं, इसमें स्फीनॉइडल लेयर साइनस है. You already done the sphenoidal layer sinus. So this is the body of the sphenoid. Yeah. And this is the posterior wall of the pharynx, the nasopharynx. और आपको पता है posterior wall of the nasopharynx is made up of superior constrictor muscle. Now, at the junction of the base of the skull, base sphenoid and posterior wall of the nasopharynx, you have this lymphoid aggregation, which is called pharyngeal tonsil या nasopharyngeal tonsil. आप जो भी कहना चाहें. और प्लीज एक बात याद रख लीजिएगा, मैं पहले भी बहुत दफा रिपीट की है और ये है बेटा कि this tonsil obviously is covered by mucous membrane. Normal, like you and me, a normal tonsil, no inflammation, no enlargement, that is called pharyngeal tonsil या nasopharyngeal tonsil, आप जो भी कहना चाहें. But if it enlarges, if the pharyngeal tonsil enlarges, it becomes inflamed, it produces, gives problems. That enlarged pharyngeal tonsil is called adenoids. So adenoids is simply an enlarged pharyngeal tonsil. A normal size, non-problematic tonsil is simply called pharyngeal tonsil. Enlarge होगा तो adenoid कहते हैं, नहीं enlarge होगा फिर इसको adenoid नहीं कहते हैं. So एक तो nasopharynx में आपको pharyngeal tonsil मिलेगा. And then please note, immediately anterior to the pharyngeal tonsil you have the eustachian tube, opening of the eustachian tube, and surrounding the eustachian tube you have another lymphoid aggregation. Since tube को surround कर रही है तो ये tubal tonsil होगा. So please एक बात याद रख लीजिएगा और ये है, in the nasopharynx you have two tonsils. In the nasopharynx you have two tonsils. You have the pharyngeal tonsil over here and you have the tubal tonsil over here. So nasopharynx में you have two tonsils. Okay. Then you have one tonsil over here, tongue के पीछे, lingual tonsil. And oral cavity में you have another tonsil between the palatoglossal and palatopharyngeal fold, palatine tonsil. So oral cavity में palatine tonsil है, oral cavity में ही you have the lingual tonsil, but there is two tonsils present in nasopharynx and two tonsils present in oropharynx. ये चीज क्लियर है? जब लोकेशन पूछी जाती है इन टॉन्सिल्स की तो सिंपली बस आपने यही लिखना है, location of the, where is the, say, tubal tonsil located, upswing, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Please note कि laryngopharynx में कोई tonsil नहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना? You have two tonsils in the oropharynx and two tonsils in the nasopharynx. Any questions? ये बात समझ में आ गई है? Thank you, Mamuna. Good thing is कि Mamuna अभी तक जाग रही है. Good. अच्छा चलें, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ फर्दर करूं, तो आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग, because then I want to do the pharyngeal recess with you. Any question, किसी से भी रिलेटेड, अपनी सब स्टेज से, अपनी फाइनल स्टेज से, एग्जाम से, किसी चीज से भी रिलेटेड. एनी क्वेश्चन? Does anybody have any idea when the government plans to open the colleges, schools, whatever? Universities तो कह रहे हैं for postgraduate universities probably will reopen after Eid. What about the rest? Syllabus बता
सब स्टेज श्योर अभी बता देती हूँ बेटा, स्टेप बाय स्टेप। मुझे जस्ट गिव मी अ मिनट टू ओपन माय फोन। इसमें है मेरे पास, मैंने तो आपको इसीलिए बेटा कहा था कि somebody get in touch with me, the CR or GR should get in touch with me. You should have my phone number, मैं आपको भेज देती हूँ। Just give me a minute, मैं ये निकाल लूँ। जी बेटा, if you want to write down, it is nose and first cranial nerve, joints of the neck, pharynx, paranasal sinuses, suboccipital triangle, and hyoid bone. And you have the tongue and 12th cranial nerve, salivary glands, submandibular and sublingual. मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, इसमें दो क्रेनियल नर्व्स हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। पहली बात तो ये है, भूलना नहीं इस चीज को, क्योंकि अब मैं एक एक करके सब क्रेनियल नर्व्स वाइंड अप हो गए हैं। 9th 10th 11th है, वो नेक्स्ट सब स्टेज की है, 8th रह रही है, और 7th का भी कुछ इंफ्राक्रेनियल पार्ट रह गया। मैं फिर सब स्टेज रिपीट कर रही हूँ। नोज एंड फर्स्ट क्रेनियल नर्व, joints of neck, pharynx, paranasal sinuses, tongue and 12th cranial nerve, and salivary glands में से submandibular and sublingual. Anything else? ये syllabus clear है? First cranial nerve, joints of the neck, paranasal sinuses, tongue, 12th cranial nerve, submandibular. तो बेटा फर्स्ट क्रेनियल नर्व तो कर ली है, तो व्हाट अबाउट द नोज? नोज भी है, नोज के बगैर सर फर्स्ट क्रेनियल नर्व तो नहीं हो सकती है ना। नोज तो सबसे पहली क्लास मैंने ली थी आपको पिछले ट्यूसडे। देखो नोज भी जी, सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल भी है, बिल्कुल है सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। मैंने आप लोग को कल तो करवाया है सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, तो फिर और मैंने किस लिए करवाना था अगर कोर्स में नहीं देना था तो। नोज भी है, सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, भूलना नहीं है इसको। यहाँ पे आपने लिखा नहीं है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। और बोलो, नोज लिखा है? बेटा क्लास का CR एंड GR आप मुझे अब इस वक्त अपने सेल फोन के नंबर्स अगर इस वक्त शो डिस्प्ले कर दें ताकि मैं लिख लूं, एंड दैट विल मेक योर लाइफ इजी। मैं आपको ये सिलेबस जो है, जो बनाया होता है एक सब स्टेज का, मैं आपको वो भेज दूं, ये सारी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। आपको DME की तरफ से ये डिस्प्ले नहीं किया जाता सिलेबस, वीक सिलेबस। नोज, पैरानेसल साइनसेस, टंग, हाइपोग्लॉसल, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। बॉयड बोन नहीं बेटा, हायोइड बोन, अभी तक ये नहीं पता, अफसोस। एज से
पढ़ ली सारी हायर्ड बोन, और ये नहीं पता कि हायर्ड बोन होता है बेटे, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, पैरानिसल साइनस, सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, टंग एंड हाइपोग्लॉसल नर्व, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड। डीएमई से आया है तो बस फिर ठीक है। हाँ, सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का मतलब है कि ये जो मसल्स हैं इनकी ओरिजिन इंसर्शन मैंने सारी करवाई है, एक्शन नर्व सप्लाई वो मैंने सब आपको करवा दी है कल। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ द ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बस फिर अगर डीएमए से आ गया तो फिर मसला क्या है? कंफ्यूजन। अब मुझे बताओ कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुई थी? सब कुछ तो कर लिया, एक टंग रह गई है, वो कल इंशाल्लाह हो जाएगी। 12th क्रेनियल नर्व में आपको करवा चुकी हूँ, फर्स्ट क्रेनियल नर्व में आपको करवा चुकी हूँ। ये बॉयड बोन जो है इसको एच करो, हायोइड लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हो ना, ये नौकी हो। अब बताइए, so where did the confusion arise? फेस किया था, ओके ओके। हम बेटा वो लोग डॉक्टर भी हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, डॉक्टरी पढ़े हुए बहुत अरसा हो गया ना मुझे, कोई बात नहीं। आप बी को एच कर दो, आपको पता है इट इज हाइड बोन, ठीक है। बाकी सिलेबस ठीक है, इसमें इन्होंने हाँ नहीं ऐड किया है हाइपोग्लॉसल नर्व, इसमें मेरे ख्याल में इन्होंने फर्स्ट क्रेनियल नर्व नहीं ऐड किया, नोज एंड फर्स्ट क्रेनियल नर्व, कुछ किसी बच्चे ने वहां फर्स्ट क्रेनियल नर्व मेंशन की थी, सो प्लीज नोज एंड फर्स्ट क्रेनियल नर्व ये लिखना है आपने। डीएमए वाले अगर भूल गए हैं तो दैट डजंट मीन कि आप नहीं करोगे, उनका टाइपिंग एरर, उनका मेरे साथ एक नजरियाती इख्तिलाफ उनका बेटा चलता रहता है, मैं कुछ भेजती हूँ वो कुछ और टाइप करते हैं, व्हाटएवर, उनकी भी गलती नहीं है, नॉट ऑल ऑफ देम आर डॉक्टर्स। अब क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? प्लीज ऐड फर्स्ट क्रेनियल नर्व। ठीक है, हैव यू एडेड फर्स्ट क्रेनियल नर्व बच्चों? ऐड किया है ना? ऐड किए, फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऐड कर दिए। मैंने ये नहीं सुना कि डीएमई ने भेजा नहीं था, मैंने खुद पढ़ाया है और खुद मेंशन किया है इसको। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट डीएमई। व्हाट अबाउट द फर्स्ट क्रेनियल नर्व? हैव यू एडेड द फर्स्ट क्रेनियल नर्व टू दिस सिलेबस? जी मैम, गुड। यप मैम, गुड। सीआर एंड जीआर प्लीज सारी क्लास को आप ये बताइएगा कि डीएमई से जो सिलेबस आया है उसमें एरर था और इसमें फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऐड नहीं हुई थी। वी आर ऑल ह्यूमंस बेटा, उनका कोई कसूर नहीं, उन पे इतना लोड है बेतहाशा, ठीक है। सो आई डोंट ब्लेम देम। अच्छा, और कुछ बताइए, और क्या पूछना चाहेंगे आप मुझसे? What else? What else? What other problems are you facing right now? Anything that you want me to repeat? Anything that I haven't done? I'm not touching the tongue vocal. Dr. Hiba कर देंगी, ठीक है। Tomorrow, inshallah, we'll be doing embryology. हमारी embryology की क्लास है, उसके बाद देख लेते हैं। Because gross anatomy के लिए I will
meet you on Monday afternoon. So आप मुझे उससे पहले अगर जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे आज आप बता दीजिए। साथ साथ पढ़ते रहे हो या सब कुछ आज बैठ के पढ़ो या कल उठे? अच्छा, नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, मैं तो वैसे ही पूछ रही। हम फ्रेंजल रिसेस करने लगे, फोसा ऑफ वन मोर जी मैम एक रात पहले से Salman, I honestly, I appreciate your honesty. I appreciate your honesty. I'm happy with your honesty. Even though कि मैं इसको approve नहीं करती, लेकिन I think generally हम लोग भी कोई 2-3 दिन पहले ही पढ़ते थे बेटे, साथ साथ तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 3-4 दिन 2-3 दिन पहले पढ़ ही देते थे। आप लोग ओवरनाइट पढ़ते हो, कोई बात हो जाता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई है फिर कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अच्छा, सो हम इस गैप की बात कर रहे थे और द रिसेस बिटवीन दिस फोल्ड, सल्पिंगोफेरेंजियल फोल्ड, ठीक है, या ट्यूबल टॉन्सिल का ये लोअर एंड है, फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन रेज्ड बाय सल्पिंगोफेरेंजियस मसल। ये मसल है, इसको सल्पिंगोफेरेंजियस कहते हैं। The purpose of this muscle is when it contracts, it opens the eustachian tube. इस salpingopharyngeus muscle के ऊपर जो mucous membrane है, that makes up a fold, which is called salpingopharyngeus fold. Okay. So posterior to this salpingopharyngeal fold, you have this gap between the posterior wall of the pharynx and salpingopharyngeus fold. इन दोनों के दरमियान ये जो गैप है ना, दिस गैप इज कॉल्ड pharyngeal recess या fossa of Rosenberg. ओके, मैंने आपको ये बताया था, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है, सॉरी आई वाज जस्ट ड्रिंकिंग वाटर। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि outside the pharyngeal wall over here runs the internal carotid artery over here, ठीक है। सो कोई नाड़ी, चाहे वो डॉक्टर हो या वो क्वैक हो या जो मर्जी, trying to open the eustachian tube, passes a probe या stick कह लें या जो भी कह लें, tries to pass that stick inside the opening of the eustachian tube, auditory tube या pharyngotympanic tube, आप जो भी करें, एक ही चीज का तीन नाम है। सो यहाँ पास करने की कोशिश की, यहाँ पास नहीं हुआ, स्लिप करके पीछे चला गया, यहाँ पे इस pharyngeal recess में जरा जोर से किया हुआ था, यंग आदमी था ना आपकी तरह, थोड़ा ज्यादा जोर लग गया। अब ये जो pharyngeal recess है, which is simply formed by mucous membrane from the salpingopharyngeal fold going on to the posterior wall of the pharynx. So इस mucous membrane को lying in the pharyngeal recess, इस mucous membrane को फाड़ता हुआ बाहर निकल गया और बाहर internal carotid artery पड़ी हुई थी। बस ये इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद क्या होगा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब फट जाती है फिर क्या होता है, अल्लाह ही रहम करता है। टॉन्सिल की बात कर लेती हूँ। टॉन्सिल हमने कर लिया था, पैराटाइन टॉन्सिल, ठीक है। लिंगुअल टॉन्सिल आपको हिबा करवा देंगे। इसमें जो मैंने आपको करवाना है, which is something very important, वो ये है,
मैं सारे फॉसे वगैरह जो है ना, मसल्स आप लोग खुद करोगे, मसल्स हैव नथिंग टू डू विद मी। ठीक है, इससे पहले के, सॉरी, माउथ गोज ड्राई एक्चुअली, बोल बोल के। I've been talking non-stop for the past 1.5 hours. After all, I'm human. Okay, 125. अभी तक मुझे बताइए कि एनीथिंग भी जो मैंने सारी रिपीटिशन की है फारिंग्स की, डिफरेंट पार्ट्स की, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू हैवंट अंडरस्टूड? कोई बात रिपीट करने वाली रह गई? अच्छा, ठीक है, अगर सारा समझ में आ गया है, कई दफा बता चुकी हूँ पहले भी, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब हम इस पे आ जाते हैं, पेरिफॉर्म फॉसा या पेरिफॉर्म रिसेस। क्या होता है ये पेरिफॉर्म रिसेस? दिस इज द लैरिंक्स, ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस इज कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स। और ये छोटी छोटी आपको ये नजर जो आ रही है, ये भी लैरिंक्स कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, सो ऑल दिस इज लैरिंक्स। ये क्राइकॉइड कार्टिलेज है, दिस इज आल्सो द कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स। ये थायराइड कार्टिलेज है, कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स। यहाँ पे देख लीजिए, ये सारी थायराइड कार्टिलेज है, ये ऊपर एपिग्लॉटिस है, सॉरी ये एपिग्लॉटिस है ना, और ये जो नीचे है ये क्राइकॉइड कार्टिलेज है। सो क्राइकॉइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये दिस इज द एपिग्लॉटिस। ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ, ये क्राइकॉइड कार्टिलेज, इसका ब्रॉड पोस्टीरियरली, दिस इज अ पिक्चर टेकन फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ओके, ये एपिग्लॉटिस है, ये छोटी छोटी कार्टिलेजेस यहाँ पे ये पड़ी हुई है, ये भी लैरिंक्स कार्टिलेजेस है। ओके, अच्छा, अब ये जो है ना लैरिंक्स का इनलेट है, दिस इज वेयर द एयर गोज इनसाइड द लैरिंक्स, दिस इज द इनलेट ऑफ द लैरिंक्स। ये posterior surface of the tongue है, so posterior 1/3 of the tongue, ये base of the tongue है। ओके, ये सारा सब आप खुद देख लीजिए कि फूड यहाँ पे ये टांग है, posterior surface of the tongue, ये यूवुला नजर आ रहा है। Now food from the posterior surface from the tongue slips over this epiglottis. Food, when it passes over the epiglottis, the epiglottis today, this comes down and shuts the laryngeal opening, and the food then slips down into this part. ये सारी जो है walls of the pharynx है, pharyngeal wall है। ठीक है, ये ओपन किया हुआ है, pharyngeal wall को मिडलाइन में से काट के separate out किया हुआ है। So this is the pharynx. So this part would be the laryngopharynx since it is around the larynx. ये जो walls है, this will surround this part, so ये oropharynx का। ठीक है, ये फूड का मैकेनिज्म तो आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी पढ़ लेना है, अभी किया नहीं लेकिन कर लोगे, एफएससी में तो यकीनन किया ही होगा। यहाँ पे मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहती हूँ जो इट इज नॉट रियली विजिबल ओवर हियर, और वो ये है, दिस इज द हायोइड बोन, और ये सारी जो है ना दिस थिंग, ये कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज है। ये आपको उसके दो हॉर्न्स नजर आ रहे हैं थायराइड कार्टिलेज के, ये इसकी
and the two sides join together in the midline. आपने वो देखा ही होगा. ये जो prominence लड़कों में particularly जो neck में नजर आती है, Adam's apple कहते हैं इसको. That is produced by the fusion of the two sides of the thyroid cartilage. That produces anteriorly जो fusion होती है, that is called Adam's apple. So ये thyroid bone है बेटा. This is the thyroid cartilage. And ये जो fibers नजर आ रहे हैं, extending between the hyoid bone and the thyroid cartilage. This membrane is hyoid membrane. Okay. अभी जो epiglottis है, this is covered by mucous membrane. और ये आपको बताया ये these are the small cartilages of the larynx. ये large cartilage है, the small cartilages of the larynx. So what happens is this fold, there is a fold of mucous membrane that connects the epiglottis to this arytenoid cartilage. Arytenoid cartilage, ये जो छोटी सी cartilages है ना, इनमें से एक है, ठीक है? Cricoid, sorry, arytenoid corniculate cuneiform है, इस तरह पड़ी हुई होती है. So between the epiglottis and the arytenoid cartilage, you have this fold of mucous membrane, which is called epiglottic fold. ये epiglottic fold. Okay? यहाँ पे ये जो fold है, this will be the epiglottic fold. ये cartilages हैं, small cartilages of the larynx. ओके, अब आपको जो बताना है वो पिरिफॉर्म फॉसा है. इसमें मैं आपको आधा लैरिंक्स पढ़ा चुके इस सिलसिले में. But the piriform fossa is this depression lying between the larynx and the ये जो है this on the lateral side on either side of the larynx. So ये laryngopharynx में आपको मिलेगा. ये wall है pharynx, laryngopharynx. So you find it in the laryngopharynx on either side of the larynx. This depression, ये वाली इसमें बड़ी अच्छी नजर आ रही है. ये larynx है, cricoid cartilage of the larynx. ये larynx है. So this depression is the piriform fossa. ठीक है? अच्छा. अब होता क्या है? ये laryngeal inlet है, ये वाली. So ये piriform fossa है. ये laryngeal inlet है ना. So ये जो आपका epiglottic fold है, this is forming the medial boundary of the piriform fossa. ये piriform fossa के medially epiglottic fold पड़ा हुआ है. In fact ये fold जो है ये इस fossa को separate कर रहा है इस laryngeal inlet से. Laterally क्या पड़ा हुआ है? So ये fossa है यहाँ पे. Medially you have epiglottic fold. Laterally you have thyroid cartilage. ये thyroid cartilage and above thyroid membrane. तो ये दोनों इसके lateral relations में आती है. So this is a fossa bounded medially by the epiglottic fold and laterally by the thyroid cartilage below and thyroid membrane above. Important thing to remember is that this is all covered by mucous membrane. You can appreciate that. And deep to the mucous membrane, you have the internal laryngeal nerve. This internal laryngeal nerve is a branch of superior laryngeal nerve, which is a branch of vagus nerve. Okay. अच्छा. अब इसकी importance क्या है? इसकी importance ये है कि during eating, any crumb or any small piece of food or anything may go and get stuck over here. यहाँ जाके फंस जाता है. ये यहाँ चला भी जाता है, ना भी फंसे चला जाता है. As soon as it goes there in this fossa, piriform fossa, this food particle stimulates the internal laryngeal nerve, which is lying immediately deep to the mucous membrane.
When this internal laryngeal nerve is stimulated, तो रिफ्लेक्स कफिंग स्टार्ट हो जाती है। सो आपने बहुत दफा नोट किया होगा खाते हुए एकदम खांसी आ जाती है, वो खांसी इसलिए आती है कि फूड पार्टिकल्स गो एंड गेट लॉज्ड ओवर हियर। ठीक है, यहाँ फूड पार्टिकल्स आ गए। अब आगे क्या होगा? आगे ये होता है कि एट टाइम्स बच्चे, if they are not careful, they may swallow a fish bone or कोई भी चिकन की बोन या एनीथिंग या इवन अ फूड पार्टिकल, लार्ज फूड पार्टिकल दैट फेल्स टू डिस्लॉज। अब वो जब produces damage to the internal laryngeal nerve, जब internal laryngeal nerve damage हो जाएगी तो you will have sensory loss over this area. Sensory loss का मतलब ये कि now if anything goes and gets lodged over here, there is going to be no coughing. ये internal laryngeal nerve intact nerve की that was producing a bout of cough whenever any food particle came and sat over here. ठीक है, अब otherwise वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं खांसी आती ना सही, but the problem is if food particle is sitting over here, it may slip into this opening of the larynx, laryngeal inlet. Agar ye food particle, if it jumps over, instead of just sitting over here, if it jumps over into the larynx, inlet of the larynx, and that is a disaster because then the foreign body goes into the larynx and then into the trachea and the lungs, etc. So ये इसकी clinical importance थी। अब मुझे आप बता दें what else do you think needs to be covered? Last 15 minutes हैं, just tell me what else do you need to, what else needs to be covered? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो बेटा? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई? तो कुछ भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलो वैसे गप्पे मार लो, आखिरी 15 मिनट है, अभी तो एक रिवीजन क्लास मंडे की भी लेनी है, उसमें भी मारेंगे। अभी के लिए व्हाट इज न्यू? समझ आ गया? थैंक यू, थैंक यू बेटा। फिर मुझे ये बता दो आज, अगर समझ आ गया है then why do you do so badly in your MCQs and even your SCQs? SCQ अगर मैं सीधा दूंगी give the nerve supply of the muscles of the tongue or give the nerve arterial supply of the pharynx, tonsil, फिर तो ठीक है। मैं जरा सा टेढ़ा देती हूँ ना, वहां पे आप फिसल जाते हो। Why? पढ़ते नहीं हो उसको, गौर से नहीं क्वेश्चन को पढ़ते हो, या आपको शायद उस बात की आदत है कि लाइन फॉर लाइन एक किताब में से लाइन बाय लाइन पढ़नी है। आप किताब सामने रखो, टीचर उसी तरह पढ़ाता जाए। What is the exactly is the problem? Because I can only help you out if I know the problem, beta. Please try to understand this thing. मुझे आप, बहुत से बच्चों ने ये तो कहा हमसे एमसीक्यू में प्रॉब्लम देता है, लेकिन एमसीक्यू में क्या प्रॉब्लम होता है आपको? आप मुझे ये बताइए आज। देखो कुछ एमसीक्यू स्ट्रेट होते हैं, हमें by the orders of UHS when we make a paper हमें ये कहा हुआ है बेटा कि 70% MCQ स्ट्रेट होंगे, बाकी 25 to 30% MCQs जरा ट्विस्ट करके बनाने हैं, उसमें क्लिनिकल अप्लाइड देना है और थोड़ा ट्विस्ट देना है उसको। वो 70%, आप तो वो 70% जो स्ट्रेट हैं वो भी नहीं करते हो,
वजह, हालांकि वो बिल्कुल सीधे होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है, आप लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि जी 20 क्वेश्चंस वर्ड फॉर वर्ड, 20 एमसीक्यूज वर्ड फॉर वर्ड यूएचएस के एग्जाम में आ गए, ये सब गलत है। वर्ड फॉर वर्ड कुछ नहीं आता। मैंने देखा है, आपके पास पेपर्स देखे यूएचएस के, कुछ जो बनाती हूँ उसको पिकअप, कोई भी वर्ड फॉर वर्ड केएलएन को नहीं देता, कोई वर्ड फॉर वर्ड बीडी को नहीं देता, कोई वर्ड फॉर वर्ड किसी और किताब को नहीं देता। मेनली यही दो किताबें हैं ना, बीडी है, केएलएन है, और केएलएन है। आप लोग बीडी नहीं पढ़ते, केएलएन पढ़ते, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बीडी नहीं पढ़ते, लेकिन बाकी कॉलेजेस में तो पढ़ी जाती है। सो आप प्लीज इस चीज को जहन से निकाल दें। जस्ट ट्राई एंड आप अपनी किताब को फॉलो करना चाहते हो जरूर करो, इट्स वेरी गुड बुक, जरूर करो, लेकिन उसको समझ के पढ़ो। ये नहीं समझो कि एक एक लाइन इसमें से आ जाएगी और मैंने सिर्फ लाइन दर लाइन पढ़ाना है, वो नहीं होता है बेटा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा हमेशा इसलिए बताती हूँ बिकॉज बाकी कॉलेजेस के लिए, यूएचएस के लिए ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोग कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, मैं डिटेल्स तो मैंने अब बतानी छोड़ दी है, फायदा नहीं है। अब मुझे बताओ मसला क्या है एमसीक्यूज में, हाउ कैन वी हेल्प यू आउट विद द एमसीक्यूज। कोई जवाब नहीं देगा? अच्छा, अगर कोई मसला नहीं है तो बेटा देन सूट योरसेल्फ। चलो ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया है और कोई और चीज भी नहीं है तो बहुत अच्छा है। 2 बजे 10 मिनट रह गए हैं, we'll sit for another 5 minutes and then we'll leave, क्योंकि इन एक्स्ट्रा क्लासेस में ये तो फायदा हुआ है कि हमारा सिलेबस इन टाइम खत्म हो गया है। नॉट दैट इट रियली मेक्स एनी डिफरेंस, नॉट दैट यू गोइंग टू स्टडी ऑन संडे, संडे तो एंजॉयमेंट का दिन होता है, होना भी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सारा दिन एंजॉयमेंट का नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ संडे शुड बी रिजर्व फॉर अ बिट ऑफ स्टडी। सैटरडे नाइट ठीक है, एंजॉय करो, संडे morning so food, so get up at 2 o'clock, have food, lunch, watch a movie or something, शाम को बैठ के पढ़ लो, लेकिन वो तो नहीं होगा, वो तो संडे की रात को 1 बजे स्टार्ट होनी है। ओके, पर इट्स अप टू यू, doesn't really matter, what matters is कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए, जो कि नहीं है। मैं जो एसक्यू जरा सा इधर से उधर होता है उसमें आप फिसल जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता, तो दैट इज माय प्रॉब्लम। और उसकी वजह सिर्फ यही है, नंबर वन आपके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो, और उससे बड़ी वजह ये है कि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको समझते नहीं है उसमें लिखा क्या होगा। मैंने आपको हमेशा ये बात समझाई है बेटा, एज डॉक्टर्स आपके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होने चाहिए, वेरी शार्प रिफ्लेक्सेस, इसलिए क्योंकि 1 मिनट विद इन मिनट भी बहुत ज्यादा है, स्प्लिट ऑफ सेकेंड में you have to decide what to do with your patient, तो ये रिफ्लेक्सेस है अगर शार्प होंगी, अगर टाइमली डिसीजन होगा, टाइमली आपने सोचा हुआ होगा what to do, only then will you be able to save your patient, because the patient can die in a second, less than a second। तो आपको
नंबर 1 अपना नॉलेज एडिक्वेट करना है ताकि आप एक क्विक डिसीजन ले सको। इस एमसीक्यू का आंसर ये है। ठीक है, वो मेनली जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है दैट्स लैक ऑफ नॉलेज, और कुछ नहीं। और आप समझते नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते, सुनते भी नहीं हो जब पढ़ाया जा रहा होता है, और चूंकि सुना नहीं होता तो फिर किताब में से आपको मुश्किल होती है पढ़ने में। सोच लिए बेटा, अब मुझे कोई और anything else? So at the end of the lecture I have 82, which is at what time? 154 पे I have 82 students. उससे पहले ठीक था, लेकिन अब जो है it is going from bad to worse. पर अब टाइम भी नहीं रहा, 2 बजने वाले हैं। I guess you guys want to go and have your lunch. ये चीज याद रख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैशियर्स जो हैं they are very important, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये डायग्राम जो है, ये आप कट सेक्शन जो बनाया हुआ है, दिस इज हैंडमेड, इसको आप कॉपी आउट कर लें, बिकॉज यही आपका क्वेश्चन है। बिकॉज सब क्वेश्चंस इवन यूएचएस में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, थोड़े से आपके जो है कंसेप्चुअल भी होते हैं। तो रिटन एग्जाम आपको अपने जोरे बाजू पे पास करना होगा, ये आपको पता है। वाइवा तो हम आपको करवा देते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। सो कोई क्वेश्चन? सब कुछ समझ तो आ गया है, लेकिन चलिए ठीक है, अगर आप ये समझ तो क्या हो सकता है। बात ये है कि अगर आज समझ में आ गया, घर जाके इसी वक्त पढ़ लेते, 5 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता। अब जब एक रात पहले खैर से पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा अगर नहीं है प्रॉब्लम तो अभी तो मैं हूँ, 2 बजे तक तो मैं हूँ बेटा। You have a final stage coming up by after the Eid holidays. Eid काइंड ऑफ खराब ही हो गई होगी, मगर आपने तो एक रात पहले पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। 2 रातें पहले पढ़ लेना है ना, फाइनल स्टेज जो है तो थोड़ा सा ज्यादा इज्जत दे दो, 2 रातें पहले पढ़ लेना। उसके बाद स्ट्रेट हुए हम इंशाल्लाह न्यूरोएनाटॉमी कर लेंगे। so, आप लोगों ने न्यूरोफिजियोलॉजी तो पढ़ ली है, तो कीपिंग दैट इन माइंड में आपको एम्ब्रियोलॉजी नर्वस सिस्टम की एंड डू इट विद यू, ठीक है। तो कैन एनीबडी टेल मी, आजकल आप
फिजियोलॉजी में क्या कर रहे हैं? स्पेशल सेंसेस फिजियोलॉजी में, ओके। स्पेशल सेंसेस में क्या कर रहे हो? आई कर रहे हो कि एयर कर रहे हो? आई कर रहे हैं, ओके। बिकॉज जब मैंने डेवलपमेंट की थी तो व्हाट अबाउट, अच्छा एयर अभी नहीं किया, फाइन फाइन। और न्यूरोफिजियोलॉजी सारी खत्म हो गई, नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, हैव यू फिनिश्ड दैट? Okay, fine. That's good. That means you know all the tracks, you know all the parts of the brain. So teaching you neuro anatomy would be, and development of anatomy, development of the nervous system is going to be an easy uh, subject because आपने mostly किया तो हुआ ही है. तो मतलब जाग रहे हो, डांट भी मेरी सुन रहे हो, बट यू डोंट नो व्हाट टू से. मैंने तो कहा था मुझे बता दो मसला, आपके उसमें जो भी आता है आपके एंड पे बता दो ताकि मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोई कोशिश करूं. लेक्चर समझ में आता है ग्रॉस एनाटॉमी के या एम्ब्रियोलॉजी की? अच्छा आता है, बड़ा प्रॉम्प्ट है जो आ गया, उसको मतलब है वाकई आता है. आई टेक द क्रेडिट फॉर इट, मुझे आता है. बाकी थोड़ा सा क्रेडिट आपको भी दूंगी, आप समझ ले सुनते हो. दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड. आई एम ग्लैड. चलो, दो बज रहे हैं पूरे. सो खुदा हाफिज टिल टुमारो मॉर्निंग. आई विल सी यू अगेन 10 o'clock टुमारो मॉर्निंग. ठीक है जी, खुदा हाफिज. गॉड ब्लेस यू ऑल. खुदा